Hello everyone, so welcome to your own channel. I hope everybody is well prepared for your upcoming computer board exam. So I'm sure you will do very well in the exam, so no need to worry. And the purpose of today's video is the quick revision of whole syllabus. So if you are prepared once, so now it's time to revise whole syllabus. So in this video, I will try to take each and every concept, not in that detail. I will try to cover the concept quickly. So ready to revise with me? चलिए शुरू करते हैं. Let's start. So let's start with the OOP, very first topic given in your syllabus. So what is a OOP? It's a object oriented programming. So what is this object oriented programming? It is an approach, or you can say it is a paradigm in which program is divided into objects. क्या करता है ये? प्रोग्राम को डिवाइड करता है ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है. एंड ईच ऑब्जेक्ट कंटेन्स डेटा एंड फंक्शन. हर एक ऑब्जेक्ट में क्या होता है? डेटा और फंक्शन. ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका सी. इसमें भी डेटा फंक्शन है और इसमें भी डेटा फंक्शन है. So each object contains data and function. So what is the advantage of this OOP approach over the POP? POP not given in your syllabus, so we will talk about OOP. So what is the advantage of OOP? In OOP, data is more secure. How the data is more secure? Because in this, data does not flow freely. Like this data can only be accessed by this function within the same object. The same way, this data can be accessed by this function only, and this data can be accessed by this function. This data cannot be accessed by the function of another object. Same way, this data cannot be accessed by this function, right? So it makes it more secure. इससे आपका data more secure हुआ. ठीक है. तो क्या बोलेंगे? OOP is an approach in which program is divided into objects, and this approach focuses more on data than function, right? Now we will talk about the four principles of OOP. So now we will see the four principles of OOPs. So first is data abstraction. Now what is data abstraction? Representing essential features without including background details. मतलब जो जरूरी है वो ही दिखाएंगे विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी, वी आर लीस्ट बोदर्ड अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी बिहाइंड दैट टेक्नोलॉजी. इफ यू आर यूजिंग एनी कैमरा, इफ यू आर यूजिंग द फोन, so we are not concerned about the electronic components and the physics behind that. We are concerned about few buttons, right? So data abstraction भी प्रोग्राम में जितना भी ऑब्जेक्ट का रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, नीडेड इन्फॉर्मेशन है वो ही दिखाते हैं थ्रू एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस. दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, जस्ट टेलिंग द नेम. थ्रू एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस वी यूज़ द डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन जावा, राइट? आई होप इट इज़ क्लियर. तो जितना ज़रूरी है उतना दिखाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, बाकी बैकग्राउंड डिटेल्स को नहीं दिखाएंगे, राइट? Second is encapsulation. What does it mean? Encapsulation means wrapping of data and functions of an object as a single unit. Right? अभी OOPs के जो डायग्राम बनाया था, if you remember, ऑब्जेक्ट में क्या होता है? डेटा और फंक्शन. तो क्या करता है ये? डेटा एंड फंक्शन को रैप टुगेदर, डेटा एंड फंक्शन को एज अ सिंगल यूनिट बना देता है बाय रैपिंग इट टुगेदर. उससे क्या होगा? डेटा विल नॉट फ्लो फ्रीली. तो डेटा हाइडिंग बोलते हैं इसे. डेटा आपका फ्रीली अवेलेबल नहीं है, आपका डेटा सिक्योर है, तो इस फीचर को डेटा हाइडिंग फीचर है. तो डेटा हाइडिंग फीचर पॉसिबल बिकॉज ऑफ एनकैप्सुलेशन. डेटा हाइडिंग फीचर इज नॉट सेम एज ऑफ एनकैप्सुलेशन. एनकैप्सुलेशन की वजह से डेटा हाइडिंग है. तो यू कैन से एनकैप्सुलेशन प्रमोट्स द डेटा हाइडिंग. तो इट फीचर पॉसिबल बिकॉज ऑफ एनकैप्सुलेशन, राइट? तो एनकैप्सुलेशन, wrapping of data and function together as a single unit in object. Now the next is inheritance. Inheritance related to the hereditary word. Like son or any child acquires the property or characteristics from his or her parents.
जो पेरेंट्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बच्चे में आते हैं, कुछ फीचर्स उनके मिलते हैं, कुछ उनके अलग से भी होते हैं पर कुछ वो लेते हैं, है ना। तो सेम वे इनहेरिटेंस में भी वन क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टीज फ्रॉम द अनदर क्लास, इसको बोलते हैं हम इनहेरिटेंस। तो इट इज़ अ मैकेनिज्म इन विच वन क्लास एक्वायर्स द फीचर्स ऑफ अनदर क्लास, जिससे फीचर्स लेते हैं वो होती है सुपर क्लास। चलो एग्जांपल से समझते हैं, जैसे व्हीकल है, व्हीकल में कार, ट्रक, बाइक, तो व्हीकल क्या हो गया, सुपर क्लास और बेस क्लास, और ये जो है कार, ट्रक, बाइक, दीज आर द डिराइव्ड क्लास। तीनों व्हीकल हैं, राइट, तीनों ही व्हीकल हैं, तीनों में कुछ कॉमन फीचर्स होंगे जो व्हीकल में होते हैं और कुछ उनके अलग भी होंगे। ये कार है तो कार का अपना अलग फीचर होगा, ट्रक है तो ट्रक का अलग होगा, राइट। तो ये व्हीकल आपकी बेस क्लास है और ये डिराइव्ड क्लास। सो डिराइव्ड क्लास एक्वायर सम फीचर्स और प्रॉपर्टीज फ्रॉम द बेस क्लास, ठीक है। सेम वे शेप है, कई बार ऐसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं आपके, तो ये भी सिर्फ डायग्राम दे देंगे तो आपको पहचानना हो गया तो ये कौन सा आपका प्रॉपर्टी है या प्रिंसिपल है या रिलेशन है शेप और उसमें, तो आप बोल सकते हैं इसमें इनहेरिटेंस है, ठीक है। तो शेप है सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, तीनों शेप्स हैं और तीनों कुछ प्रॉपर शेप वाले फीचर्स होंगे और तीनों का अपना अलग फीचर्स भी हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनहेरिटेंस। और कैसे इनहेरिट करते हैं, जैसे कार कैसे व्हीकल को इनहेरिट करेगी, बाय यूजिंग वन कीवर्ड, बस ये वर्ड याद करना है, एक्सटेंड्स। और एक्सटेंड्स का स्पेलिंग देख लो अच्छे से, और ये स्मॉल केस में होता है, ठीक है। कई बार ई कैपिटल कर देंगे या कुछ भी कैपिटल स्मॉल का दे के एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, तो एक्सटेंड्स इज इन स्मॉल केस ओनली एंड वी यूज़ एक्सटेंड नहीं है, एस भी है, एक्सटेंड्स, राइट। बस इतना है इसमें ना। तो लास्ट इज पोलीमॉर्फिज्म। सो इसका डेफिनेशन बस देख लेना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। पोलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पोली मीन्स मैनी, मॉर्फस मीन्स फॉर्म्स। तो इसका पर्पस, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ फंक्शन फॉर मोर देन वन पर्पस। इसका जो पर्पस, इसका प्रोसेस है, क्या करता है ये, किसी भी फंक्शन को एक से ज़्यादा पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग द पॉलीमॉर्फिज्म। हैव वी यूज द पॉलीमॉर्फिज्म? यस वी हैव यूज्ड। कहाँ यूज़ किया था, मेथड ओवरलोडिंग में, ठीक है। तो ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है दो टाइप्स की होती हैं, कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म और आपका रन टाइप। तो ये आपका जो मेथड ओवरलोडिंग है ये होता है कंपाइल टाइप, ठीक है। और आपका एक मेथड ओवरराइडिंग भी है विच इज़ नॉट इन योर सिलेबस, वो होता है रन टाइम। तो वाई दिस इज कॉल्ड द कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म, बिकॉज कंपाइल टाइम पर पता चलता है एरर अगर है तो, ठीक है। इफ़ एनी एरर इज देयर इट विल शो द एरर ड्यूरिंग द कंपाइलेशन, और वो रन टाइम पे बताएगा। I hope it is clear. So now we will talk about object and class. See, everything around us is an object. Whatever we see, all are objects only. Real world objects, right? This is marker, this is also object. Pen है, pen भी object है. Fan है, fan भी object है. This board is also object. And every object has its own characteristics and behavior. अब characteristics क्या होते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसका साइज, इसका शेप, इसका कलर, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। ये करता क्या है या हम इससे क्या करते हैं, हम लिखते हैं, तो दैट इज इट्स बिहेवियर, राइट। सो एवरी ऑब्जेक्ट, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर, राइट। सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट की टर्म्स में जब हम इन ऑब्जेक्ट्स को इन अ प्रोग्राम यूज़ करेंगे उसको बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रोग्राम है तो सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स, प्रोग्राम में हम ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोल देते हैं हम, डेटा मेंबर्स, ठीक है, डेटा मेंबर्स। और जो आप इंस्टेंस वेरिएबल्स भी बोलते हैं या मेंबर वेरिएबल्स। बिहेवियर को क्या बोलते हैं, मेंबर मेथड्स या फंक्शंस, ठीक है। तो ईच ऑब्जेक्ट हैज़ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। कैरेक्टरिस्टिक्स को बोलेंगे डेटा मेंबर्स और बिहेवियर हो जाते हैं आपके मेंबर मेथड्स, राइट। और ये सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट बोलेंगे इनको। नाउ व्हाट इज़ अ क्लास? क्लास क्या होता है, इट इज़ अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर इट्स ऑब्जेक्ट्स। ये देखो क्लास से क्या है, क्लास से आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हो, तो क्लास क्या है, एक टेम्पलेट देता है, एक ब्लूप्रिंट देता है। तो क्लास को ऑब्जेक्ट फैक्ट्री भी बोलते हैं ना। तो क्लास कैन क्रिएट द सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स,
ठीक है। तो क्लास एक ब्लूप्रिंट दे देगा आपको जिसके बेस पे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, यानी कि जो क्लास एक जनरल सा ब्लूप्रिंट दे दिया, इसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो वो हर ऑब्जेक्ट में होंगे आपके। एग्जांपल से समझेंगे, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर इट्स ऑब्जेक्ट्स। इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देखो, जैसे आपका क्लास मान के चलते हैं, टीवी है, टीवी ऑब्जेक्ट है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं अभी हम। टीवी है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, उसका साइज़ होगा, उसका प्राइस होगा, और उसमें कितने नंबर ऑफ चैनल्स हैं बोल सकते हैं, ठीक है। और बिहेवियर क्या होगा, आप उसमें क्या करते हैं, यू कैन वॉच टीवी प्रोग्राम्स, यू कैन प्ले गेम्स, यू कैन वॉच मूवीज़, ये बिहेवियर हो गया। ये एक ब्लूप्रिंट है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टीवी की और ये बिहेवियर है। इसमें और भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड हो सकती हैं, जैसे कलर हो गया या कुछ और आप दे सकते हो, ठीक है। और ये बिहेवियर है। तो हमने कुछ एग्जांपल लिया जस्ट। तो 2 टीवी सेट, एक सोनी का है, एक एलजी का है दोनों टीवी, है ना। तो ये सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों टीवी ही हैं, राइट। ये टीवी है तो ये भी टीवी होगा, रेडियो नहीं हो जाएगा। तो सोनी का है तो सोनी का अपना कुछ कंपनी है, वो डिसाइड करेगी कितने साइज़ का टीवी बनाना है, कितने चैनल्स रखने हैं, कितना प्राइस रखना है। तो इसकी खुद की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, यही वाली है पर साइज़, प्राइस, चैनल्स, पर उसकी वैल्यूज़ इसकी खुद की डिफरेंट होगी। एलजी की खुद की डिफरेंट होगी, ठीक है, ये अलग अलग हो सकती है। लेकिन बिहेवियर क्या है, हर टीवी में आप यू कैन वॉच टीवी प्रोग्राम, यू कैन प्ले गेम, तो बिहेवियर विल बी कॉमन। टीवी है तो टीवी तो सब टीवी एक ही जैसे करते हैं काम। तो जस्ट एक एग्जांपल है, आप इसमें डिबेट मत करना कि नहीं उसमें ये फंक्शन है उसमें नहीं होगा, जस्ट एक एग्जांपल लिया है। तो टीवी है तो उसके बिहेवियर कॉमन रहेंगे, सोनी भी टीवी है, एलजी भी, तो उनका बिहेवियर कॉमन रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अभी क्या है, तो अभी ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स आर द एंटिटीज, ये ऑब्जेक्ट्स हैं विच पोजेस डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉमन बिहेवियर। जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उनकी वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, बट बिहेवियर विल बी कॉमन। तो ऑब्जेक्ट्स आर द एंटिटीज विच हैव द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका अपना, बट बिहेवियर सेम ही होगा, ठीक है, क्लियर है। सो नाउ वी विल सी एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर क्लास एंड ऑब्जेक्ट. This is not a program, it's just an example of software class and object. And what is that class? Class rectangle है, software class है. Data members, अब rectangle के data members क्या होंगे, लेंथ और ब्रेथ, राइट. और member methods क्या होंगे, इनपुट फंक्शन ले लिया हमने, कैलकुलेट टू कैलकुलेट द एरिया, डिस्प्ले टू डिस्प्ले द एरिया, एंड इनपुट इज यूज टू गेट द लेंथ एंड ब्रेथ. सो जस्ट टेकिंग द एग्जाम्पल, ठीक है. सो ये डेटा मेंबर्स हो गए, ये मेंबर मेथड्स हो गए. और रेक्टेंगल क्लास के अगर हम 2 ऑब्जेक्ट बना देते हैं, R1 R2, और R1 R2 क्या है, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स ही होंगे. जब ये आपको दोनों ही रेक्टेंगल ही होंगे, राइट. जब ये रेक्टेंगल है तो R1 R2 भी दोनों रेक्टेंगल ही होंगे. नाउ अभी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ, बट इनका वैल्यूज़, इसका अपना वैल्यूज़ होगा, इसका अपना वैल्यूज़ होगा, राइट. तो इट हैज़ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी अपनी लेंथ एंड ब्रेथ है, इसकी अपनी, बट बिहेवियर विल बी कॉमन. ये बिहेवियर है, ये कॉमन होंगे, ठीक है. नाउ वी विल सी फ्यू क्वेश्चंस विच आर कॉमनली आस्क्ड इन द एग्जाम. क्लास इज एन ऑब्जेक्ट फैक्ट्री, एक्सप्लेन. तो क्या एक्सप्लेन करेंगे, क्लास इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट फैक्ट्री बिकॉज इट इज़ यूज टू क्रिएट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स. ये भी क्लास, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, दोनों सिमिलर है. which is used to create similar objects having different characteristics and common behavior. तो क्या लिखेंगे, because it is used to create the similar objects having different characteristics and common behavior, that's why it is called an object factory. तो क्लास से आप कितने सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं ना, तो that's why we call it object factory. और ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, it is also called the instance of class, ठीक है. अगर पूछ ले क्यों इंस्टेंस ऑफ क्लास बोलते हैं, तो बोल सकते हो कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, व्हेन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट इट ऑटोमेटिकली इंक्लूड्स द इंस्टेंस वेरिएबल. जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उस पर इंस्टेंस वेरिएबल ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाते हैं. दैट्स व्हाई वी कॉल इट इंस्टेंस ऑफ क्लास. क्लास हैज़ कंपोजिट डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है. क्यों है, बिकॉज क्लास में आप सी डेटा मेंबर्स कैन बी इंट, जो क्लास में डेटा मेंबर्स लेते हैं कैन बी इंट,
सारे भी इंट हो सकते हैं, बट इंट भी हो सकता है, उसमें फ्लोट भी हो सकता है, उसमें डबल भी हो सकता है, उसमें स्ट्रिंग भी होता है। लिए थे ना हमने इंट, एज, स्ट्रिंग, नेम। तो क्लास को कंपोजिट क्यों बोलते हैं? बिकॉज क्लास इंक्लूड्स डिफरेंट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स अंडर सिंगल डिक्लेरेशन। एक से ज़्यादा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ले सकते हो अंडर सिंगल डिक्लेरेशन, रेक्टेंगल के अंदर, कोई भी क्लास नेम के अंदर। इसीलिए इसको हम बोलते हैं कंपोजिट डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंस्टेंशिएशन। इस जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, क्लास नेम ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम, उसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंशिएशन। ठीक है, और क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड instantiation. So these are the few important terms. I hope it is clear. Now we will talk about the user defined method. So what is a method? Method definition will not be asked, just for understanding. Method is a segment of program which can be reused as and when needed or necessary. Right? जब जहाँ ज़रूरत है उस segment को कॉल कर सकते हैं। फ़ायदा क्या होगा इससे? Complexity of programs will be reduced. Right? बिगर प्रोग्राम आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो आपका सिंपलर हो जाएगा, मेमोरी स्पेस कम ऑक्यूपाई होगा, आपका जो प्रोग्राम है विल एग्जीक्यूट फास्टर एंड मोर रीडेबिलिटी विल बी। आपको आसानी से समझ आ जाएगा व्हाट इज़ द प्रोग्राम अबाउट। सो दीज आर द फ्यू एडवांटेजेस ऑफ मेथड। अब मेथड को डिफाइन कैसे करते हैं? सबसे पहले हम एक्सेस स्पेसिफायर देते हैं, फिर रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन नेम, फिर पैरामीटर लिस्ट। जैसे एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। अगर कुछ नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, चलिए हम पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड की बात करते हैं। पब्लिक स्पेसिफायर क्या होता है? विद इन क्लास एंड आउटसाइड द क्लास, दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं। प्राइवेट क्या होता है? ओनली विद इन क्लास। प्रोटेक्टेड क्या होता है? आपका विद इन क्लास एंड इन इनहेरिटेड और डिराइव्ड क्लास। ठीक है, तो हमारा दोबारा बोलते हैं, पब्लिक क्या है? विद इन क्लास, आउटसाइड क्लास। प्राइवेट ओनली विद इन क्लास। प्रोटेक्टेड विद इन क्लास एंड इन डिराइव्ड क्लास, इनहेरिटेंस में। ठीक है, चलिए तो अभी हम एग्जांपल लेते हैं इसका। हमने एक्सेस स्पेसिफाई पब्लिक लिया है, रिटर्न टाइप इंट है, फंक्शन नेम है ऐड। तो जो फंक्शन नेम होता है वो स्मॉल लेटर से शुरू होता है, इसलिए हमने ए दिया है। देन इंट ए कोमा इंट बी पैरामीटर लिस्ट है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया? सम किया और उसको वैल्यू रिटर्न कर दिया। अब ये हो गया एक फंक्शन हमने डिफाइन किया है। जो फंक्शन का फर्स्ट लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं हम? फंक्शन प्रोटोटाइप और हेडर भी बोलते हैं। फंक्शन प्रोटोटाइप बोलते हैं और हेडर। और ये जो है ऐड से पैरामीटर लिस्ट तक, फंक्शन नेम प्लस द पैरामीटर लिस्ट, इसको बोलते हैं हम सिग्नेचर। ठीक है, ये हो गया सिग्नेचर, इतना वाला पार्ट। और ये आपका फंक्शन प्रोटोटाइप, ये अंदर। ठीक है, ये आउटर वाला सिग्नेचर है। क्लियर है? इट कैन बी आस्क्ड, राइट? चलिए अब हम समझते हैं एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर बाय टेकिंग वन एग्जांपल। नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल and through this example we will learn what are actual parameters, what are formal parameters, and how to invoke the static or non-static function, right? So first we have taken the class sum, उसमें हमने एक function बनाया int add, return type int है, function name add है और दो पैरामीटर पास किए हैं, उसमें हमने सम करके रिटर्न कर दिया है। यहाँ पे हमने एक्सेस स्पेसिफायर नहीं देते हैं तो वो कौन सा होता है? डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर, विच कैन बी it default access specifier है, means the function can be called within class, outside the class and even outside the package. If you write the public cannot be called outside the package. ठीक है, तो आप public भी लिख सकते हैं या कुछ नहीं लिखे, एक ही बात है, फाइन। तो हमने यहाँ फंक्शन रिटर्न किया। मेन फंक्शन में कैसे इन्वोक किया? हमने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट किया? बिकॉज मेन फंक्शन आपका स्टैटिक फंक्शन है और ये आपने ना स्टैटिक लिखा है ना कुछ, तो उसमें क्या होगा? ये नॉन स्टैटिक फंक्शन हो जाएगा। आपने अगर स्टैटिक नहीं लिखा इट मीन्स वो नॉन स्टैटिक फंक्शन है। और टू कॉल द नॉन स्टैटिक फंक्शन फ्रॉम द स्टैटिक वी नीड टू क्रिएट द क्लास ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए हमने क्लास का
ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके थ्रू हमने फंक्शन को कॉल किया एस डॉट ऐड, 2 पैरामीटर पास किए। 2 क्यों किए? बिकॉज आपका डेफिनेशन में 2 पैरामीटर हैं, ठीक है, और इसको डिस्प्ले कर दिया। अब इसमें फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर्स कौन से हुए? दीज आर द फॉर्मल पैरामीटर्स, द पैरामीटर्स विच रिसीव द वैल्यू फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन, जो वैल्यूज़ को रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन। ये है कॉलिंग फंक्शन, राइट। और ये कौन क्या हुए? एम और एन आपके एक्चुअल पैरामीटर, द वैल्यूज विच आर पास्ड फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन टू द मेथड विच इज कॉल्ड। जो हम पास करते हैं वैल्यू वो एक्चुअल पैरामीटर है, जो रिसीव करता है वो फॉर्मल पैरामीटर्स है, राइट। तो ये हो गया हाउ टू इन्वोक द नॉन स्टैटिक फंक्शन इन फ्रॉम द स्टैटिक फंक्शन। अगर हम इसको स्टैटिक बना देते हैं तब क्या होगा? यहाँ पे स्टैटिक लिखना होगा उसको बनाने के लिए। तो क्या चेंज करें हम? देन वी डोंट नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, अभी हमें इसका ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो इसका ज़रूरत नहीं है तो यहाँ से एस हट जाएगा। अब हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं फंक्शन को, ऐड एम कोमा एन, या तो ऐसे लिखो या फिर आप क्लास नेम के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। सम डॉट ऐड कर सकते हो क्लास नेम के साथ, अदरवाइज ऐसे भी दे सकते हो, सिंपल ऐड एम एन। ये रिटर्न कर रहे हैं, बाकी सेम रहेगा, दिस इज़ द। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर स्टैटिक से कोई भी फंक्शन इन्वोक करना है, अगर स्टैटिक करना है तो डायरेक्टली करेंगे, अगर नॉन स्टैटिक करना है तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। और दूसरा चीज़ याद रखेंगे कि स्टैटिक फंक्शन कैन यूज़ ओनली स्टैटिक मेंबर्स। तो इसमें तो पैरामीटर थे, ठीक है, तो ये तो आपके डायरेक्टली यूज़ हो गए। अगर इंस्टेंस वेरिएबल हम देते इंट एक्स तो वो हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते थे, बिकॉज स्टैटिक है तो स्टैटिक ही कॉल करेगा, ठीक है। तो उसको इन्वोक यूज़ करने के लिए हम स्टैटिक इंट एक्स इक्वल्स टू 10 वटेवर, तो वो देते। तो स्टैटिक फंक्शन कैन इन्वोक ओनली और कैन यूज़ ओनली स्टैटिक मेंबर्स, याद रहेगा। और स्टैटिक से नॉन स्टैटिक को कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। स्टैटिक से स्टैटिक हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और इसी में अगर 2 फंक्शन हैं हमारे, एक फंक्शन, दोनों नॉन स्टैटिक हैं, सपोज अगर हमने 2 फंक्शन बनाए हैं मेन से ऊपर, दोनों नॉन स्टैटिक हैं, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, नॉन स्टैटिक से दूसरे नॉन स्टैटिक को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, ठीक है। बस एक पॉइंट याद रखेंगे, बाकी में डायरेक्टली कॉल है। एक पॉइंट याद रखेंगे कि कब हमें क्रिएट करना पड़ता है, जब स्टैटिक से नॉन स्टैटिक, बाकी सब में डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, नाउ द नेक्स्ट इज कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस देख लेते हैं। इसी में चेंज कर दें तो इसमें हम नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जांपल टू सी द कॉल बाय वैल्यू और पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस। तो क्लास डेमो लिया तो उसी में हमने एक चेंज फंक्शन बना दिया जिसमें 2 पैरामीटर पास किए हमने, ठीक है। इसको भी स्टैटिक ले लिया है और रिटर्न टाइप इसकी वॉइड ली है। वॉइड मतलब कोई रिटर्न टाइप नहीं है, ठीक है। तो a इक्वल्स टू a+10 और b इक्वल्स टू b+5, हमने इन दोनों पैरामीटर्स का इंक्रीमेंट कर दिया है, उसके बाद हमने डिस्प्ले कर दिया है। तो ये कौन से पैरामीटर्स हैं? फॉर्मल पैरामीटर्स। तो फॉर्मल पैरामीटर्स गेट चेंज्ड मैसेज दे दिया और a और b को डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। मेन में क्या किया हमने? मेन में अगेन 2 mn वेरिएबल लिए, उसको पास किया चेंज में। अब चेंज को हमने क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं किया, डायरेक्टली कॉल किया है। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक है, ठीक है। तो चेंज m, n, राइट। तो अभी जब हमने m, n दिया तो क्या होगा? 10 और 20 m और n की वैल्यूज पास होंगी यहाँ पर, है ना। चेंज फंक्शन है तो इसमें पास होगी। तो जो वैल्यू हमने पास की है वो कॉपी हो जाएगी a और, उसका कॉपी जा रहा है a और b में, ठीक है। तो m और n का वैल्यू 10, 20 है, उसका कॉपी गया आपका वैल्यूज का कॉपी a और b में। तो a का वैल्यू 10 हो गया, n का वैल्यू 20 हो गया। फिर हमने कहा a का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाए 10 से और b का वैल्यू 5 से। तो a का वैल्यू अगर 10, m का वैल्यू 10 भेजा था, a 10 हुआ तो 10 + 10 20 हो गया। n का वैल्यू हमने 20 भेजा था तो b का वैल्यू यहाँ 20 हुआ, 20 + 5 यहाँ पे 25 हो गया।
तो हमने मैसेज में उसको डिस्प्ले कर दिया, तो क्या दे देगा 20 और 25 अलोंग दिस मैसेज। ठीक है, तो इसका मतलब जो फॉर्मल पैरामीटर्स थे ए बी वो चेंज हो गए, तो इसीलिए हमने लिखा फॉर्मल पैरामीटर्स गेट चेंज ए बी, 20-25 हो गए, है ना। अब आओ मेन में हमने उसके फंक्शन कॉल करने के बाद अगर हम m और n को दोबारा से डिस्प्ले करते हैं तो क्या वैल्यू देगा, सेम देगा 10 और 20। इट मीन्स जब भी हम पास बाय वैल्यू करते हैं तो क्या होता है, इफ एनी चेंज इन द फॉर्मल पैरामीटर्स दैट चेंज विल नॉट रिफ्लेक्टेड इन द एक्चुअल पैरामीटर्स, एक्चुअल पैरामीटर्स रिमेन्स द सेम। ठीक है, अगर फॉर्मल पैरामीटर में चेंज हो रहा है तो एक्चुअल पैरामीटर में चेंज जरूरी क्या नहीं होता। ठीक है, इट विल नॉट रिफ्लेक्ट द चेंज इन एक्चुअल पैरामीटर, वन थिंग। एंड द सेकेंड थिंग इज कॉल बाय वैल्यू कब होगा, जब भी हम कोई प्रिमिटिव वैल्यू पास करेंगे, प्रिमिटिव डेटा टाइप वैल्यू, इंट किया, कैर किया, फ्लोट किया, डबल किया, तो जब भी हम प्रिमिटिव वैल्यू पास करते हैं उस केस में आपका कॉल बाय वैल्यू ही होता है। और कॉल बाय वैल्यू में फॉर्मल पैरामीटर चेंज होने पे एक्चुअल पैरामीटर चेंज नहीं होता है। तो कॉल बाय रेफरेंस कब होगा, सेकेंड टर्म पास बाय रेफरेंस है, जब भी हम ऑब्जेक्ट्स और एरे को यूज़ करेंगे। तो ऑब्जेक्ट और एरे अगर हम पास करेंगे तो आपका कॉल बाय रेफरेंस होगा। ठीक है, याद रहेगा, प्रिमिटिव में कॉल बाय वैल्यू, ऑब्जेक्ट और एरे में कॉल बाय रेफरेंस। चलिए उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो लेट्स मेक द क्लास, सो दीज प्रोग्राम्स विल नॉट बी आज, दिस इज़ फॉर जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि कैसे आपका वर्क करता है कॉल बाय रेफरेंस। तो समझते हैं बस, इसको रटना नहीं है। ठीक है, क्लास डेमो है, ठीक, उसमें हमने एक इंस्टेंस वेरिएबल ले लिया आपका इंट डेटा इक्वल्स टू 50, फंक्शन बनाया वो एक चेंज, उसमें क्या पास किया, एक ओपी, हमने एक रेफरेंस बनाया, यू कैन से ऑब्जेक्ट, किस क्लास का, ऐसी ऑपरेशन क्लास, कुछ भी लिख सकते हैं, किसी भी क्लास का, बस एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ओपी डॉट डेटा इक्वल्स टू ओपी डॉट डेटा प्लस 100 कर दिया। मेन में क्या किया हमने, मेन में इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया क्योंकि ये नॉन स्टैटिक है, SOPLND डॉट डेटा। अब जब जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं किसी भी क्लास का तो क्या हो जाता है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो उसमें ऑटोमेटिकली आपका इंस्टेंस वेरिएबल इंक्लूड हो जाता है, तभी इसको हम इंस्टेंस बोलते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये D है, जो D किसे रेफर कर रहा है, ऑब्जेक्ट को जिसमें डेटा इक्वल्स टू 50 है, या आप D एक ऑब्जेक्ट का नाम है ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक, अब हमने दिया D डॉट डेटा, तो D डॉट डेटा की वैल्यू क्या है 50, तो यहाँ पे आ जाएगा 50। ठीक, फिर हमने फंक्शन कॉल किया D डॉट चेंज, उसमें D को पास कर दिया, मतलब इस रेफरेंस को पास किया है। रेफरेंस मतलब हमने इसके एड्रेस को पास किया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के, तो रेफरेंस पास किया, तो रेफरेंस ये OP आपका अगेन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, OP जो रेफरेंस है या ऑब्जेक्ट है वो भी सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर करेगा, क्योंकि हमने D को पास किया, D भी एक आपका रेफरेंस है, ये भी एक रेफरेंस है, तो OP में असाइन हो गया D, मतलब उसका ही एड्रेस असाइन हो गया। रेफरेंस मतलब एड्रेस, हम इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस पास कर रहे हैं, तो दोनों के दोनों सेम को रेफर कर रहे हैं, है ना। तो अब हमने बोला OP डॉट डेटा इक्वल्स टू OP डॉट डेटा प्लस 100, तो यानी कि यही सेम चीज़ है, दोनों एक को ही रेफर कर रहे हैं, यानी कि जो डेटा 50 था अब क्या हो गया 50 प्लस 100 150, अब 150 हो गया। ठीक है, ठीक है, फंक्शन कॉल हो गया। वापस आते हैं SOPLND डॉट डेटा, तो अब हम बोल रहे हैं D डॉट डेटा को रेफर करो। अब डेटा की वैल्यू पहले 50 थी, अब कितनी हो गई 150, बिकॉज दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं, तो क्या करेगा ये 150। तो व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस, इन केस ऑफ कॉल बाय रेफरेंस या पास बाय रेफरेंस, आपका अगर फॉर्मल पैरामीटर, ये फॉर्मल पैरामीटर ही है, फॉर्मल पैरामीटर में कुछ भी चेंज होता है तो वो रिफ्लेक्ट होता है आपके एक्चुअल पैरामीटर में। एक्चुअल पैरामीटर D था, फॉर्मल पैरामीटर OP था। ठीक है, तो उससे आपने जो चेंज किया वो रिफ्लेक्ट होगा आपका D में, उसमें भी दिखेगा, है ना। D डॉट डेटा दिया 150,
तो इसमें चेंज होता है और कॉल बाय वैल्यू में चेंज नहीं होता है एक्चुअल पैरामीटर। आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए अब देखते हैं प्योर मेथड एंड इम्प्योर मेथड विच इज़ रिलेटेड टू दिस ओनली। नाउ वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन प्योर मेथड एंड इम्प्योर मेथड। तो क्या होता है प्योर मेथड? द फंक्शन विच रिटर्न्स वैल्यू। तो प्योर मेथड हमेशा रिटर्न करेगा वैल्यू को। इम्प्योर मेथड विच मे नॉट रिटर्न वैल्यू। ठीक है, तो जिसमें रिटर्न टाइप होगा वो प्योर मेथड। तो प्योर मेथड में रिटर्न होना चाहिए, रिटर्न टाइप। ठीक है। When invoked doesn't cause any change in the state of an object। जब हम प्योर मेथड को इन्वोक करते हैं तो उसके कारण कोई चेंज नहीं आता ऑब्जेक्ट की स्टेट में। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ मीन्स नो चेंज इन वैल्यूज ऑफ पैरामीटर्स पास्ट। जब हम इस प्योर मेथड को कॉल करते हैं तो जो एक्चुअल पैरामीटर्स हैं, ठीक है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। नो चेंज इन द वैल्यूज ऑफ पैरामीटर पास्ट। तो ये किस में नहीं आता? अभी हमने पढ़ा है कॉल बाय वैल्यू में। ठीक है, तो याद रखेंगे ये। तो इसको जब इन्वोक करते हैं स्टेट का, जो ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज होता है, उसका क्या मतलब हुआ? चेंज इन द वैल्यूज ऑफ पैरामीटर पास्ट। तो एक्चुअल पैरामीटर में चेंज होता है जब इम्प्योर मेथड को हम कॉल करते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेट करेंगे। तो ये कहाँ पे होता है प्योर मेथड? कॉल बाय वैल्यू। इट टेक्स प्लेस इन कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू में ही एक्चुअल पैरामीटर चेंज नहीं होता ना, तो इट टेक्स प्लेस इन कॉल बाय वैल्यू। तो रिलेशन याद रखेंगे, कॉल बाय वैल्यू में प्योर मेथड और इट टेक्स प्लेस इन कॉल बाय रेफरेंस। जब कॉल बाय रेफरेंस होगा तब उसमें इम्प्योर मेथड होगा, बिकॉज उसमें चेंज हो जाता है एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे जो स्टेट का ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता, इट डज़ नॉट कॉज एनी साइड इफेक्ट। ये लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन में कि किस में साइड इफेक्ट्स नहीं होता। तो प्योर मेथड इट कॉजेज अनवांटेड साइड इफेक्ट, इसमें साइड इफेक्ट्स होता है, तो इसको बोलेंगे इम्प्योर मेथड। राइट, तो इट कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यू। डिफरेंस तो नहीं आता है मोस्टली, बट इट कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यू और असर्शन, आपका जो स्टेटमेंट वाले हैं आपके असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस, उसमें इट कैन बी आस्क्ड। ठीक है, समझ आ गया अच्छे से। नाउ वी विल सी फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है? इट इज़ वन ऑफ द फॉर्म ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, और यू कैन से फंक्शन ओवरलोडिंग इम्प्लीमेंट्स पॉलीमॉर्फिज्म। बताया था जब हमने पॉलीमॉर्फिज्म डिस्कस किया था। कौन सा पॉलीमॉर्फिज्म? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और स्टैटिक बाइंडिंग। ठीक है, अब फंक्शन ओवरलोडिंग होता क्या है? समझते हैं इसको, डेफिनेशन लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है? जब हम एक ही प्रोग्राम में सेम फंक्शन नेम लेते हैं और डिफरेंस कहाँ आता है? कैन वी टेक द सेम फंक्शन नेम इन अ प्रोग्राम? यस, बट डिफरेंस कहाँ होगा? ईदर टाइप इन पैरामीटर लिस्ट और द नंबर ऑफ पैरामीटर्स। या तो पैरामीटर जो हमने पास किए हैं उसका टाइप अलग हो या फिर नंबर अलग हो। ठीक है, रिटर्न टाइप सेम है अलग है, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। तो रिटर्न टाइप को नहीं देखना है, सिर्फ हमें देखना है एरिया है तो इसमें 2 इंट एल इंट भी है, तो दूसरा हमने अगर एरिया लिया है तो उसमें या तो हम टाइप चेंज कर देंगे, इंट है तो डबल कर दिया, ठीक है, या फिर हम एक पैरामीटर और बढ़ा देंगे, तब भी वो फंक्शन ओवरलोडिंग होता है। ठीक है, तो फंक्शन ओवरलोडिंग में फंक्शन नेम सेम रहेगा, तो पैरामीटर्स या तो नंबर्स आपके पैरामीटर्स के अलग होने चाहिए या फिर टाइप, कोई भी एक टाइप, जरूरी नहीं है दोनों डबल हो, एक भी डबल करते तब भी ठीक था। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शन ओवरलोडिंग। सो वी कैन डू ओवरलोडिंग इन केस ऑफ फंक्शंस। नाउ बात करते हैं आपकी कंस्ट्रक्टर की। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर भी एक मेंबर मेथड ही होता है जिसका नाम सेम होता है एज ऑफ क्लास नेम। तो इट इज़ अ मेंबर मेथड हैविंग द सेम नेम एज ऑफ क्लास। ठीक, तो इसमें क्या फीचर्स हैं कंस्ट्रक्टर के? फंक्शन से कैसे डिफरेंट है? कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप नहीं होती है, वॉइड भी नहीं होता है, कुछ नहीं लिखते हैं। ठीक है, कॉल्ड एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। कब कॉल होता है? इसको कोई अलग से कॉल नहीं करना पड़ता, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मेथड को कॉल करते हैं, कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। कब होता है? जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास का। ठीक, टू पर्पस क्या है कंस्ट्रक्टर का? पर्पस ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल। बेसिकली जो हम कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं उसमें इंस्टेंस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं।
and it should always be public. Constructor can never be private, can never be protected, it should always be public. ठीक है, याद रहेगा. 3 टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज्ड और पैरामीटराइज्ड. डिफ़ॉल्ट क्या है? जब हम कंस्ट्रक्टर को लिखते ही नहीं हैं, हमने कोई कंस्ट्रक्टर लिखा ही नहीं है, तो कैसे इंस्टेंस वेरिएबल्स आपके इनिशियलाइज होंगे? तो ये आपका कंपाइलर जो है एक आपका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है खुद ही. ठीक है, हमें दिखता नहीं है, हमने तो लिखा ही नहीं है, बट वो एरर नहीं दिखाता. वाई? बिकॉज आपका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है और उसमें क्या होगी, उसमें इनिशियल वेरिएबल जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं उसको इनिशियलाइज करते हैं विद द डिफ़ॉल्ट वैल्यू. तो जितने भी हमने वेरिएबल्स लिए हैं तो उनकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है उससे इनिशियलाइज हो जाता है. ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपका कंपाइलर क्रिएट कर देता है और जो इंस्टेंस वेरिएबल है डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाते हैं. ठीक है, देन नॉन पैरामीटराइज्ड. अगर हम कंस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे नॉन पैरामीटराइज्ड होगा, और अगर हम पैरामीटर्स पास कर देंगे तो वो पैरामीटराइज हो जाएगा. और इनको कैसे कॉल करते हैं पैरामीटराइज नॉन पैरामीटराइज को, चलिए देखते हैं. नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल. क्लास एम्प्लॉय है जिसमें हमने 2 इंस्टेंस वेरिएबल पास किए दिए हैं, डिक्लेयर किए हैं, इंट एज स्ट्रिंग नेम. राइट, एम्प्लॉय एक कंस्ट्रक्टर है जिसका नेम एज ऑफ क्लास नेम है. ठीक है, तो उसमें हमने इनिशियलाइज कर दिए दोनों इंस्टेंस वेरिएबल को, एज 30 दे दिया, नेम संजय दे दिया. तो इसमें हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया, तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर हो गया? नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. ठीक है, फिर हमने एम्प्लॉय लिया, उसमें हमने 2 पैरामीटर पास किए हैं, तो हमने कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर पास किए हैं, तो ये एग्जांपल हो गया आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. उसमें हमने क्या किया, ए का वैल्यू एज में डाल दिया और जो यहाँ पास होगा वैल्यू हमने उसमें नेम में डाल दिया. ठीक, अब मेन के अंदर ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन हमने बनाया है, उसके अंदर हमने क्या किया, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसमें हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया, तो ये किसे कॉल करेगा? ये आपके नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और एज का वैल्यू 30 कर देगा, नेम का वैल्यू संजय कर देगा. एम्प्लॉय E1 दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, E1, ये E था, ये E1 है, जिसमें हमने एम्प्लॉय में पास कर दिया 50, पंकज. तो ये वाले इस कंस्ट्रक्टर में जाएगा मैच करके, तो यहाँ 50 हो जाएगा और यहाँ पे पंकज, और ये वैल्यू एज और नेम में असाइन हो जाएगी. इसी को हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी बोलते हैं. इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, इसमें 2 पैरामीटर हैं और कंस्ट्रक्टर हमने सेम यूज़ किया है, ऑब्वियसली सेम ही होगा क्लास नेम, तो इसको हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी बोलते हैं. ठीक है, तो यही है कंस्ट्रक्टर में कैसे इन्वोक करना है और कैसे उसको डिफाइन करना है. राइट, अब वेरिएबल्स भी डिस्कस कर लेते हैं. ये होता है इंस्टेंस वेरिएबल विच वी डिक्लेयर अबव द मेथड. जब हम मेथड्स के अबव कुछ डिक्लेयर करते हैं उसको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल. अगर हम इस यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड यूज़ कर दें तो वो स्टैटिक स्टैटिक वेरिएबल्स बोलते हैं. और क्लास वेरिएबल ऑल्सो, ऑलवेज रिमेंबर स्टैटिक वेरिएबल्स आर ऑल्सो कॉल्ड क्लास वेरिएबल. लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? जो अगर हम वेरिएबल इस किसी भी ब्लॉक या तो मेथड हो या कंस्ट्रक्टर हो उसके अंदर डिक्लेयर कर दें, या कोई लूप लगाया तो उसके अंदर अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसका स्कोप उस ब्लॉक तक ही है, तो उसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल, और उसको हम बाहर यूज़ नहीं कर सकते हैं. और इस इंस्टेंस वेरिएबल को वी कैन यूज़ एनीवेयर. समझ आया? चलिए, सो नाउ वी विल सी रैपर क्लासेस. So Java provides a corresponding class for each of 8 primitive data types which are known as wrapper class. तो Java क्या करता है? Java जितनी भी 8 primitive data types है उसका एक corresponding class देता है, और वो class को क्या बोलते हैं हम? wrapper class. तो wrapper class कितनी हुई आपकी? 8. बाइट का कैपिटल B हो जाएगा, शॉर्ट, इंट का इंटीजर, लॉन्ग का लॉन्ग रहेगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा, फ्लोट का फ्लोट, डबल का डबल, कैर का कैरेक्टर, बुलियन का बुलियन. ठीक है, सो इंटीजर और कैरेक्टर ही चेंज हुआ, बाकी सेम है, फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाता है. सो दीज आर द रैपर क्लासेस. Now why do we need wrapper classes? And these wrapper classes defined in which package? Lang package, right? And why do we need wrapper classes? Wrapper classes used to convert primitive data type into its corresponding object. तो
प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें रैपर क्लास का ज़रूरत पड़ता है। कैसे? अगर हमें 20 एक प्रिमिटिव है, इंट डेटा टाइप है, उसको कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट में। ये इंटीजर है, इंटीजर आपकी रैपर क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट आई है इक्वल्स टू न्यू इंटीजर। अगर हम इसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप पास करते हैं तो ये कन्वर्ट कर रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट में, इंट को इंटीजर में। ठीक है, तो ये इस रैपर क्लास का एक नीड है। तो पहले एक्चुअली क्या होता था, पहले वर्जन में अगर कोई फंक्शन में या फिर हम कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं, किसी प्रिमिटिव डेटा टाइप असाइन कर रहे हैं डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट में, अगर हम लिखें इंटीजर i इक्वल्स टू 20 तो वो एरर शो करता था। प्रीवियस वर्जन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता था, इस 20 को फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट इनटू ऑब्जेक्ट एंड देन वी विल यूज दैट। तो हम डायरेक्टली प्रिमिटिव डेटा टाइप किसी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट में असाइन नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो हमें मैन्युअली उसको कन्वर्ट करना पड़ता था। देन रैपर क्लास प्रोवाइड्स सेवरल एडिशनल मेथड्स टू देयर, इसको हम बॉक्सिंग भी बोलते हैं, ठीक है। बॉक्सिंग जब हम मैन्युअली कन्वर्ट करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप को इस कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट में। और सेकंड क्या है, रैपर क्लासेस प्रोवाइड सेवरल एडिशनल मेथड्स टू देयर रिस्पेक्टिव डेटा टाइप। अब ये जो रैपर क्लासेस हैं, क्लासेस क्या होता है, ग्रुप ऑफ मेथड्स। तो हर क्लासेस में कुछ मेथड्स होते हैं, है ना। तो उन मेथड्स को यूज़ करने के लिए हमें रैपर क्लासेस का जरूरत पड़ा। फॉर एग्जांपल किस टाइप के मेथड, जैसे इंटीजर एक क्लास है, उसका मेथड पार्सिंट। लॉन्ग क्लास है, पार्स लॉन्ग। फ्लोट है तो पार्स फ्लोट। डबल है तो पार्स डबल। तो इन फंक्शंस की अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़ती है तो हमें रैपर क्लास का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं क्योंकि वो लैंग पैकेज में है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका एक्सेस कर सकते हो। पार्सिंट क्या करता है, स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में। पार्स लॉन्ग क्या करेगा, स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा लॉन्ग में। स्ट्रिंग इट डजेंट मीन कि आपके अल्फ़ाबेट्स में है, स्ट्रिंग भी आपकी, सपोज यहाँ पे हमने स्ट्रिंग दिया 1 2 3, ये भी एक स्ट्रिंग ही है, डबल कोट्स में है, ठीक है। तो जब हम 1 2 3 ये पास करेंगे तो वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा 1 2 3। लॉन्ग अगर वैल्यू है स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे लॉन्ग में, ठीक है। देन सिमिलरली एक टू स्ट्रिंग फंक्शन होता है। टू स्ट्रिंग कैन बी यूज्ड विद ऑल दीज क्लासेस लाइक इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग इन टेक्स्ट। तो ये क्या करेगा, जो एक्स आपकी जो इंटीजर टाइप प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसको कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में। टू स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें, इंटीजर टू स्ट्रिंग या इंट टू स्ट्रिंग, लॉन्ग टू स्ट्रिंग, फ्लोट टू स्ट्रिंग, डबल टू स्ट्रिंग। तो टू स्ट्रिंग फंक्शन प्रिमिटिव डेटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है और पार्स इंट, पार्स लॉन्ग, पार्स फ्लोट, पार्स डबल उल्टा काम करता है, स्ट्रिंग को प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये प्रिमिटिव डेटा टाइप से स्ट्रिंग। आई होप इट इज़ क्लियर। तो रैपर क्लास के ये नीड है। अभी हम बात करते हैं ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। नाउ वी विल सी ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। क्या होता है ये, सी in latest versions or you can say after GTK 1.5 whatever the versions came, उसमें क्या होता है, जब भी कब हम असाइन करते हैं कोई प्रिमिटिव वैल्यू उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट में तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है विदाउट शोइंग द एरर। या फिर कोई एक फंक्शन है ABC जो एक्सपेक्ट कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, है ना। जब हम उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं हम पास कर देते हैं कोई भी डेटा टाइप, इंट डेटा टाइप वैल्यू लाइक 30। ये एक्सपेक्ट कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, इंटीजर क्लास है तो क्लास का ये ऑब्जेक्ट हुआ या रेफरेंस हुआ। तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है रिसीविंग वैल्यू में क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट ही आना चाहिए। लेकिन हमने फंक्शन कॉल करते टाइम हमने पास कर दिया 30 वैल्यू, तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, उसको एरर नहीं दिखाएगा। और ये भी अगर हम 20 असाइन करें इंटीजर आई में तो एक्सेप्ट कर लेगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला एरर दिखाता है, एरर प्रीवियस वर्जन्स में दिखाता था, लेटेस्ट वर्जन में वो एक्सेप्ट कर लेता है। क्यों एक्सेप्ट कर लेता है, बिकॉज ऑफ ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। अब जो काम हम मैनुअली करते थे, इंटीजर आई इक्वल्स टू न्यू इंटीजर, उसमें 20 पास करके कन्वर्ट करते थे, अब वो क्या कर देता है, वो इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो जाता है। तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन ऑफ प्रिमिटिव वैल्यू टू रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट।
तो ये आपका प्रिमिटिव वैल्यू से उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट में इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो जाएगा, हमें कुछ नहीं एक्स्ट्रा करना, हम सीधा वैल्यू असाइन कर सकते हैं जो लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। तो इस बिकॉज ऑफ ये ऑटो बॉक्सिंग हुआ, जब हमने प्रिमिटिव वैल्यू पास करी किसी ऑब्जेक्ट में तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया प्रिमिटिव वैल्यू उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट में, तो ऑटो बॉक्सिंग हो गया, इम्प्लिसिट कन्वर्जन। और ये कौन करता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन? कंपाइलर, ठीक है। ऐसी अनबॉक्सिंग है इम्प्लिसिट कन्वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू देयर रिस्पेक्टिव प्रिमिटिव डेटा टाइप। उल्टा, अगर हमें ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना है उसकी प्रिमिटिव वैल्यू में, उसको बोल देते हैं हम अनबॉक्सिंग, ठीक है। यानी कि अगर इंटीजर आई है उसको हमें असाइन करना है किसी इंट वैल्यू में तो वो भी ले लेगा, राइट। जैसे हमने इंटीजर आई सपोज एक डिक्लेयर किया और अब हम बात कर रहे हैं इंट एक्स, ठीक है। तो अब हम ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव वैल्यू में, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। ये हो गया आपका अनबॉक्सिंग, ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर रहा है प्रिमिटिव डेटा टाइप में। क्लियर है, ठीक है। एज पर इसको न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो न्यू इंटीजर, ये प्रॉपर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, फिर उसको असाइन कर दिया इंट एक्स में, ठीक। तो ये अनबॉक्सिंग, ये ऑटो बॉक्सिंग। आई होप इट इज़ क्लियर। ओके, नाउ वी विल सी कैरेक्टर फंक्शन। कैरेक्टर क्या है? एक क्लास है, रैपर क्लास है, उसके कुछ फंक्शंस हैं जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में, राइट। तो कौन कौन से फंक्शन हैं जल्दी से देख लेते हैं। कैरेक्टर डॉट इज लेटर, तो इस सब फंक्शंस में हम एक कैरेक्टर पास करते हैं तो वो चेक करता है वो लेटर है या नहीं, अल्फ़ाबेट है या नहीं, डिजिट है या नहीं। इज डिजिट, इज लेटर और डिजिट, लेटर है या डिजिट है, और क्या रिटर्न करेगा, है या नहीं, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। या तो ट्रू करेगा या फॉल्स, इसमें हम कैरेक्टर पास करते हैं जब हम उसको अप्लाई करते हैं। इज़ वाइट स्पेस, तो हम इसमें एक स्पेस देंगे वाइट, तो वो चेक करेगा ये वाइट स्पेस है या नहीं। इज़ अपर केस है या नहीं। इज़ लोअर केस है या नहीं। टू लोअर केस क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। अगर हमने कैपिटल डाल दिया इसमें ए तो वो कन्वर्ट करके उसको स्मॉल ए बना देगा। टू अपर केस में अगर हमने स्मॉल दे दिया उसको कैपिटल बना देगा, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू कॉमनली यूज्ड कैरेक्टर फंक्शन। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। और कहाँ कौन सा लेटर कैपिटल है कौन सा स्मॉल ये भी देखना है। एमसीक्यू में इफ़ इट इज़ आस्क्ड दिस इज़ करेक्ट और नॉट, तो वो अपर केस और स्मॉल केस को चेंज भी कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से देख लो कि कैसे लिखा जाता है, अपर का यू कैपिटल, सी कैपिटल, तो दिस थिंग्स यू शुड रिमेंबर, राइट। तो ये हुआ कैरेक्टर फंक्शंस। अब बात करते हैं स्ट्रिंग की। क्या होता है स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज़ अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड विद इन डबल कोट्स, ठीक है। स्ट्रिंग एस हेलो, तो हेलो ये क्या है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड विद इन डबल कोट्स। मेमोरी में कैसे स्टोर होता है, इस तरह से इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। हेलो 5 हैं आपके, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट होगा इंडेक्स, 0 1 2 3 4, 0 से 4 तक। एस इसका रेफरेंस है जो रेफर कर रहा है इस मेमोरी लोकेशन को, ये मेमोरी में ऐसे स्टोर होता है, ठीक। स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल क्या होता है, वंस द स्ट्रिंग इज क्रिएटेड कैन नॉट बी चेंज्ड। एक बार स्ट्रिंग क्रिएट होगा बाद में चेंज नहीं होता। आप देखेंगे कि आप तो कंबाइन भी करते हैं, रिमूव भी करते हैं, तो वो कैसे हो जाता है, एक्चुअली उसका अलग से कॉपी जनरेट होता है। बट स्ट्रिंग को हम इम्यूटेबल बोलते हैं, जो एक्चुअल स्ट्रिंग क्रिएट हुई है वो चेंज नहीं होती। जब हम चेंज करते हैं तो उसका अलग से कॉपी जनरेट होकर उसमें चेंजेस होती हैं। नल स्ट्रिंग क्या होती है, नल स्ट्रिंग व्हेन यू डोंट इनिशियलाइज द स्ट्रिंग, जैसे स्ट्रिंग एस दिया बस कुछ इनिशियलाइज नहीं किया तो एस विल नॉट रेफर टू एनी मेमोरी एड्रेस। जब उसमें कुछ वैल्यू नहीं की तो एस किसको रेफर करेगा, नल को, ठीक है। तो कोई मेमोरी एड्रेस को रेफर नहीं करेगा। या फिर लिख सकते हो स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू नल, नल शुड बी स्मॉल NULL, तो ये होती है नल स्ट्रिंग जब हम उसको इनिशियलाइज नहीं करते। इन दिस केस एस डजेंट रेफर टू एनी मेमोरी एड्रेस। अगर हम उसका लेंथ चेक करने लगे तो एस डॉट लेंथ, तो एक्सेप्शन थ्रो होता है, ठीक है। तो कुछ जितने भी स्ट्रिंग फंक्शंस हैं हम नल स्ट्रिंग के साथ अप्लाई नहीं कर सकते, वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। एम्प्टी स्ट्रिंग क्या होता है, जब हम देते हैं स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू डबल कोट्स विदाउट एनी स्पेस। अगर आपने एक स्पेस के साथ दिया है तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, इट कैरीज 1 स्पेस कैरेक्टर, ठीक है। इसमें क्या है, विदाउट स्पेस हम उसको डबल कोट्स दे देते हैं, ये एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो इस एम्प्टी स्ट्रिंग रेफर्स टू द मेमोरी एड्रेस, भले ही वो ब्लैंक है बट
एम्प्टी है बट वो रेफर करता है किसी मेमोरी एड्रेस को. सो दैट्स वाई हम जो भी स्ट्रिंग के ऑपरेशंस हैं एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ अप्लाई कर सकते हैं, नल स्ट्रिंग के साथ अप्लाई नहीं करते हैं. आई होप इट इज़ क्लियर. चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस. नाउ वी विल सी फ्यू स्ट्रिंग ऑपरेशंस और स्ट्रिंग फंक्शंस. सो फर्स्ट इज लेंथ. तो लेंथ फंक्शन इज़ यूज टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. अगर हम स्ट्रिंग हमारी स्ट्रिंग एस हेलो है तो उसकी लेंथ कितनी है, क्या रिटर्न करेगा, 1 2 3 4 5. ठीक है, तो ये इसको 5 रिटर्न कर देगा. इंटीजर रिटर्न करता है ये. कैरेट इंडेक्स, इसमें अगर हम इंडेक्स पास करें तो उसका क्या कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर रिटर्न करेगा. सपोज हमने यहाँ पे दे दिया 3, कैरेक्ट 3, तो क्या है 3 पे L, तो इट विल रिटर्न कैरेक्टर L. ट्रिम क्या करता है, ट्रिम विल रिमूव द लीडिंग एंड ट्रेलिंग ब्लैंक स्पेसेस. अगर कोई आपकी स्ट्रिंग में, ये तो सपोज हमने हेलो इस तरह से लिखा, ये लीडिंग स्पेस हुआ और ये ट्रेलिंग स्पेस है, तो टू रिमूव लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस वी यूज़ द ट्रिम फंक्शन. इक्वल्स क्या चेक करेगा, दो स्ट्रिंग की इक्वालिटी चेक करेगा, वेदर द कंटेंट इज सेम और नॉट. इक्वल्स क्या करता है, जैसे एक स्ट्रिंग एस हेलो है, हमने दिया स्ट्रिंग S1 सपोज फनी दिया, ठीक है. अब ये दो इक्वल है नहीं है, बिकॉज उसकी लेंथ तो सेम है 5 5 है, बट उसके कैरेक्टर्स डिफरेंट है. तो ये क्या करेगा, उसके कंटेंट चेक करेगा, तो लेंथ भी सेम होनी चाहिए और उसके कैरेक्टर्स भी सेम होने चाहिए, तब इक्वल्स रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा. तो लिखते कैसे हैं, S1 डॉट या S डॉट इक्वल्स, उसमें हम S1 पास कर देते हैं. ठीक है. इक्वल्स इग्नोर केस, केस को इग्नोर करके चेक करेगा, ये तो केस को कंसीडर करेगा. अगर कैपिटल H है या स्मॉल h है तब भी वो फॉल्स रिटर्न करता है. ठीक है. एक सपोज हमने हेलो स्मॉल लोअर केस में दिया, एक कैपिटल केस में दिया, तो इक्वल्स क्या करेगा, कैपिटल और स्मॉल को अलग अलग कंसीडर करेगा. बट इक्वल्स इग्नोर केस, केस को इग्नोर कर देगा. हेलो हेलो है, चाहे अपर केस है या स्मॉल केस, तो वो उसमें ट्रू रिटर्न कर देगा. इंट इंडेक्स ऑफ कैर CH, तो इसमें क्या करेंगे, हम कैरेक्टर पास करेंगे, वो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स रिटर्न करेगा. अगर हम हेलो में कुछ भी K दे दिया तो K तो हेलो में आता ही नहीं, तो क्या रिटर्न करता है, -1. राइट. इंट लास्ट इंडेक्स ऑफ कैर CH, इसका यूज़ क्या है, जब हमने सपोज एक स्ट्रिंग में एक ही कैरेक्टर मल्टीपल टाइम्स यूज़ हुआ है, जैसे इसमें हेलो ही है तो 2 बार LL यूज़ हुआ है, तो कौन सा L अगर हमने यहाँ दे दिया तो कौन से L का इंडेक्स देगा, लास्ट वाले इंडेक्स का. ठीक है. 3 बार है तो भी लास्ट वाले इंडेक्स का. टू लोअर केस क्या करता है, अगर हमने कोई कैरेक्टर पास, ये स्ट्रिंग का फंक्शन है ना, तो स्ट्रिंग अगर हमने पास किया उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा. अगर हमने कोई स्ट्रिंग पास किया, ये 2 अपर केस, उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा. कॉन्कैट उसको कंबाइन करेगा, जैसे हमने यही दिया था, सपोज अगर हम लिख दें S डॉट कॉन्कैट S1, तो ये क्या करेगा, दोनों को कंबाइन कर देगा और हेलो फनी रिजल्ट आ जाएगा और उसको हम रिटर्न कर देंगे किसी स्ट्रिंग में. सब स्ट्रिंग क्या करता है, सब स्ट्रिंग उस एक स्ट्रिंग के पार्ट को अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है तब हम सब स्ट्रिंग यूज़ करेंगे. सब स्ट्रिंग में आप एक इंडेक्स भी दे सकते हो, सपोज हमने दे दिया यहाँ पे सब स्ट्रिंग में हमने दे दिया 3, स्टार्ट इंडेक्स 3, तो जो अगर हमने 3 दिया तो वो क्या रिटर्न करेगा, 3 से स्टार्ट करेगा और जितने भी आगे हैं LO रिटर्न कर देगा, है ना. सपोज हमने सब स्ट्रिंग में आप 2 इंडेक्स भी दे सकते हो, स्टार्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स. सपोज हमने दिया 1,4, स्टार्ट इंडेक्स लास्ट इंडेक्स, तो क्या रिटर्न करेगा, 1 पे है E. ठीक है. अब लास्ट इंडेक्स 4 है, बट वो 4 तक नहीं देखता है. लास्ट इंडेक्स जो भी एंड इंडेक्स भी बोल सकते हो, एंड इंडेक्स -1 कर देता है, यानी कि 1 से शुरू करके 1 2 3 4 को छोड़ देगा. ठीक है. हमेशा याद रखना कि एंड इंडेक्स -1 करता है, तो 1 2 3 क्या रिटर्न करेगा, इस सब स्ट्रिंग का पार्ट ELL. ठीक है. आई होप दीज आर क्लियर. चलिए फ्यू आर स्टिल लेफ्ट, उसको भी देख लेते हैं. So now let's see the remaining string functions. So first next is compare to function. तो compare to क्या करता है, 2 string को compare करता है, whether the 2 strings are equal or the first string is greater or the second string is greater. कैसे करता है,
देखो इसका एस अगर कैट है और S1 में हमने कोट लिया है तो दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर कैसे करेगा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। देखो इसका लेंथ से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है, ये नहीं होता कि लेंथ बड़ा है तो स्ट्रिंग बड़ा है, वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चेक करता है, उसका एस्काई कोड चेक करता है या यूनिकोड वैल्यू यू कैन से। तो सी सेम है, उसको छोड़ेगा। ए और ओ डिफरेंट है, ठीक है, तो ए का जो एस्काई कोड एस्काई वैल्यू है 65 है और ओ की कितनी होती है, आई थिंक 79। तो क्या करेगा, 65 माइनस 79 कितना आया, -14 है ना, तो -14 आ गया। अब रिजल्ट है ये, तो रिजल्ट को चेक करेगा, अगर ये लेस देन 0 है तो मतलब S इज स्मॉलर देन S1, अगर ये पॉजिटिव होता तो S ग्रेटर देन S1, अगर ये 0 होता तो S इक्वल्स टू S1, ठीक है। तो जो भी वैल्यू रिटर्न हुई है नेगेटिव है तो फर्स्ट वाला छोटा है दूसरी से, अगर आपकी पॉजिटिव है तो फर्स्ट वाला बड़ा हो जाता है सेकंड से, अगर 0 है तो इक्वल हो जाता। जहाँ भी उसको डिफरेंट कैरेक्टर मिले वहीं कैलकुलेट कर लेगा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। सेम है तो छोड़ेगा, नेक्स्ट पे जहाँ भी डिफरेंट है कैरेक्टर उसकी एस्काई कोड का डिफरेंस लेके ये रिजल्ट को चेक कर लेगा, ठीक है। अब इक्वालिटी चेक करने के लिए दो स्ट्रिंग की हम कंपेयर टू भी यूज़ कर सकते हैं और इक्वल्स भी, ठीक है। ये तो चेक करेगा S1 डॉट इक्वल्स, तो ये सीधा रिटर्न करेगा ट्रू है या फॉल्स। इसको हम कैसे लिखेंगे, S1 डॉट कंपेयर टू S2 इक्वल्स टू 0 हमें देना पड़ेगा। अगर वो इक्वल्स टू 0 है, S1 डॉट कंपेयर टू S2 इक्वल्स टू 0 है, तब स्ट्रिंग इक्वल है, ठीक है। कंपेयर टू इग्नोर केस क्या करता है, आपके केसेस को इग्नोर करके चेक करता है। अगर कैपिटल स्मॉल है इस केस में तो वो अलग अलग एस्काई कोड होगा उसका, ठीक है, ये अलग कंसीडर करेगा, बट ये उसको इग्नोर करके करेगा। रिप्लेस क्या करता है, अगर हमने दो कैरेक्टर दे दिए तो वो सपोज हमने इस कैरेक्टर को रिप्लेस करना है इससे, तो स्ट्रिंग में उस कैरेक्टर को रिप्लेस कर देगा अनदर से। अब जरूरी नहीं है कैरेक्टर दे, इट कैन बी द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। आप जैसे हमने हेलो में ELL को चेंज करना था किसी और उससे, तो वो भी दे सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एक ही कैरेक्टर को। बुलियन स्टार्ट्स विद स्ट्रिंग एस, तो हम स्ट्रिंग में चेक कर लेंगे कि इस स्ट्रिंग हमारी इस स्ट्रिंग से स्टार्ट होती है या नहीं। बुलियन एंड्स विद दिस स्ट्रिंग, ठीक है, तो ये इस स्ट्रिंग से एंड होती है या नहीं। स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या करता है, जो भी हम आर्ग्यूमेंट देते हैं, आर्ग्यूमेंट किसी भी टाइप का हो सकता है, इंट, फ्लोट, डबल, कैर, एरे भी हो सकता है, उसको कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में। तो वैल्यू ऑफ क्या करेगा, जो भी हम प्रिमिटिव डेटा टाइप देंगे यहाँ पर उसको कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू स्ट्रिंग फंक्शंस। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ द लास्ट इज एरे। एरे का वी विल सी ओनली द डेफिनेशन एंड हाउ वी इनिशियलाइज दैट। ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक इज एरे। Array is a collection of elements of same data types, either primitive or non-primitive. तो array आपका कौन सा डेटा टाइप है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, और इसमें आपके कौन से एलिमेंट्स यू कैन स्टोर द मल्टीपल वैल्यूज़, राइट, बिकॉज ये नॉन प्रिमिटिव है, यू कैन स्टोर द मल्टीपल और मोर देन वन वैल्यूज एट वन टाइम, बट सेम डेटा टाइप की होनी चाहिए। और वो सेम डेटा टाइप या प्रिमिटिव भी हो सकती है या आपकी नॉन प्रिमिटिव लाइक स्ट्रिंग का एरे बनाते हैं हम, तो वो भी बना सकते हैं, और इंट भी ले सकते हैं, फ्लोट भी ले सकते हैं, डबल भी, ठीक। और उसको कैसे डिक्लेयर किया जाता है, डेटा टाइप एरे नेम स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स टू न्यू आपकी डेटा टाइप साइज, ठीक है। और ऐसे भी लिख सकते हो, डेटा टाइप ब्रैकेट पहले भी लिख सकते हो, एरे नेम इक्वल्स टू न्यू डेटा टाइप साइज। फॉर एग्जाम्पल इंट डेटा टाइप हो गया, मार्क्स एरे का नेम, स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स टू न्यू इंट 30 साइज हो गया इसका, ठीक है ना। हाउ वी इनिशियलाइज, आपके दो तरीके से इनिशियलाइज करते हैं, बाय यूजिंग द एरे इनिशियलाइजर। हम डायरेक्ट दे सकते हैं मार्क्स इक्वल्स टू 50, 70, 80, 90, हम डायरेक्टली वैल्यू डाल रहे हैं मार्क्स एक एरे में, ठीक है। या फिर हम जो कॉमनली यूज़ करते हैं स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके करते हैं। तो स्कैनर ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया, स्कैनर OBJ इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर हमने लूप लगाया। अब इसी का एग्जांपल ले रहे हैं, तो 0 से लेस देन 4 लिया है, तो 0, 1, 2, 3, ठीक है, 0 से लेस देन 4, i प्लस प्लस मार्क्स i इक्वल्स टू OBJ डॉट नेक्स्ट। सो बाय दिस वी इनिशियलाइज द एरे। तो ये इसको वैल्यू डालेगा यूज़र, और यूज़र से इनपुट लेते हैं, तब हम स्कैनर क्लास यूज़ करते हैं। आई होप यू नो, ठीक है। तो वो
कहाँ स्टोर होती जा रही है आपकी मार्क्स एरे में. So this was about array. So we cannot take programs based on array and string. Already videos are available on the channels. I hope you have already seen that. So this was just a revision. And arrays are of two type. This is the case of single dimensional array. 2D का array अभी previous video was of 2D array only. I hope you have already watched that. So just go through that 2D array also. 2D array we haven't discussed even the syntax here. But 2D array देख लेना और उसके प्रोग्राम्स भी कर लेंगे और इनके सर्चिंग सॉर्टिंग सब अच्छे से कर लेंगे. एंड दैट्स इट. सो एंड मैथमेटिकल फंक्शंस वी कुडंट कवर इन दिस लाइब्रेरी मेथड सील फ्लो, तो उसका अलग से वीडियो है तो वो भी एक बार देख लेंगे. ठीक है. सो दैट्स इट इन दिस वीडियो. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम. डू वेल इन योर एग्ज़ाम. माई ऑल ब्लेसिंग्स आर विद यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.